Let us start the next point of this unit, UDP services. Now, UDP services have some different points. That is process-to-process communication. We know that is one of the feature of this UDP services. Process-to-process communication, connectionless services, फ्लो कंट्रोल. एक्चुअली यहाँ पे दिया है फ्लो कंट्रोल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये फ्लो कंट्रोल ये कंप्लीटली एक्चुअली होता नहीं है. एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल ये होते नहीं है, लेकिन फिर भी in some manner that can provide this particular service, that is flow control, error control. We'll see this one. Then congestion control, encapsulation and decapsulation. Most of you always familiar about this encapsulation and decapsulation. Then congestion control, error control flow, then flow control, connectionless services. We know that. One new word is there, that is queuing, and we also know that multiplexing means what and demultiplexing means what. Okay, so let us see one by one all these points. That is first is process to process communication. Now in a very first lecture we that means with the start of this UDP at very first time we say that this UDP is process to process communication. Process to process communication means it can use as a point to point. So UDP provides process to process communication using sockets. Socket is a type of actually port that through which we can transmit data, and UDP uses this socket. It is a combination. What this socket is using, ये chapter 13 इसमें अगर आप देखें बुक फरोजखान की बुक, तो उसमें ये चैप्टर 13 दिया है जिसके अंदर यूडीपी हम एक्चुअली ये चैप्टर 13 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये चैप्टर 4 होना चाहिए था ऑफ डीसीसी. ठीक है, तो ये 13 चैप्टर होगा वहां पे. What is this UDP? What is this socket? It is a combination of IP address and port numbers. So जब भी हमें डेटा सेंड करना होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, जैसा कि UDP always takes care about the data transmission related with the connectionless. And for example this video, जो भी अभी आप वीडियो देख रहे हैं और जो भी आप यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हैं, so that is always with the help of this UDP having some port number and over the particular address that goes, and that is called as socket. So it is just like a port. So several port numbers used by UDP. बहुत सारे पोर्ट नंबर है जो UDP यूज करता है. तो कौन से पोर्ट नंबर है ये है इको. इको मीन्स जब पोर्ट नंबर 7 यूज होता है तब इको यूज होगा. इको इज इकोज रिसीव्ड डेटाग्राम बैक टू द सेंडर. तो जो जिसने भी सेंड किया हो डेटा, सेंडर रिसीवर ने रिसीव किया, यहाँ पे इको मैसेज आ गया. अब यहाँ पर इसे सॉरी आपको दिखेगा नहीं ये मैं जो भी लिख रहा हूं. तो यहाँ पर जो भी सेंडर सेंड करता है मैसेज, रिसीवर रिसीव करता है और रिसीवर बैक सम इट इकोज back to the sender that is received datagram. Actually in a UDP so there is no such acknowledgement received by the receiver. जैसा कि यहाँ पे वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो that is not acknowledgement but it is a echo that receives a datagram back to the sender. अब यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि yes you are that means I am visible to you, my audio is audible to you, so that is echo. ये जाता है पोर्ट नंबर 7 से. पोर्ट नंबर 9 अगर के
कहें तो डिस्कार्ड एनी डेटाग्राम दैट इज रिसीव्ड, जो भी डेटाग्राम यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है दैट विल बी डिस्कार्डेड। तो ये कैसे पता चले किस पोर्ट से जाएगा ये, दैट इज थ्रू पोर्ट नंबर 9, दैट मीन सॉकेट। कितने यूजर्स एक्टिव है, पोर्ट नंबर 11 से आएगा एक्टिव यूजर्स। डे टाइम 13 number daytime like this. So there are number of ports and this is called as a socket. So this several port numbers used by this UDP to send the data and receive the particular information. तो यहाँ पर ये सारी चीजें, जरूरी नहीं कि आपको ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है या फिर यूज करना है. सो देर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स that can be used by the UDP. नेक्स्ट सर्विस होती है, सेकंड नंबर की सर्विस होती है कनेक्शन लेस सर्विस. अब कनेक्शन लेस सर्विस का मतलब ये है कि वहां पे कोई कनेक्शन होता नहीं है. ये एक्चुअली क्या है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर कोई कनेक्शन होता नहीं है. सो इट प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विस. सो यूडीपी सेंड्स इंडिपेंडेंट डेटाग्राम. क्या है चालू लेक्चर में क्या कर रहे हैं ओके. आप 61 ज्वाइन हुए, क्या है इनका हमेशा का नाटक है. कांट कनेक्ट टू आवर सर्विस, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन. अब आपका नेटवर्क कनेक्शन खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ ना उसको. अब यहाँ पर इंटरनेट अभी इस लैब में इंटरनेट नहीं है, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है. तो आप भी ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढो ना. कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब यहाँ पे है 61 जो कि मेरा ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट आ गए ऐसे समझ, बाकी के तो आते ही नहीं है ना. उसमें से कुछ है कि जो उनको दिक्कत आ रही है कनेक्शन में, नेटवर्क इशू है उनका. यूजर डेटाग्राम्स आर नॉट नंबर्ड. यहाँ पर यूजर डेटाग्राम नहीं होता है. पहले तो देख लेते हैं यूडीपी सेंड्स इंडिपेंडेंट डेटाग्राम मीन्स व्हाट. So this means that each user datagram sent by UDP is an independent datagram. जो भी UDP यहाँ पे send कर रहा है, that is always independent datagram. So there is no relation between the different user datagram, even if they are coming from some source process and going to the same destination program. That is called as independent datagram. इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर डेटाग्राम. डिफरेंट यूजर डेटाग्राम इनका कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, ठीक है ना. दैट इज इंडिपेंडेंट. सेकंड इज यूजर डेटाग्राम्स आर नॉट नंबर्ड. यूजर डेटाग्राम्स आर नॉट नंबर मींस जो भी यूजर डेटाग्राम है इसका कोई नंबर सीक्वेंस नंबर नहीं. That means it is not having any sequence number that are not provided by UDP to the user datagram. User datagram कोई provide नहीं करता. It is not provided by user datagram. That is a sequence number. Then third is connection. No connection established and no connection termination. Means no connection established and no connection termination means this means that each user datagram can travel on a different path. अलग अलग पाथ से ये डेटा ट्रैवल होता है. यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है ना कि एक फिक्स पाथ होगा. हमने देखा है डेटाग्राम अप्रोच लास्ट सेमिस्टर में. तो दैट इज दैट मीन्स देयर इज नो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड एंड इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड एंड देयर इज नो कनेक्शन टर्मिनेशन. अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं होता है तो कनेक्शन टर्मिनेशन का क्या मतलब आता है. तो यहां पर हम कहेंगे दैट इज कनेक्शन लेस. दैट इज ड्यू टू ओनली द कनेक्शन लेस दैट द प्रोसेस uses UDP that cannot send a stream of data to UDP
and expect UDP to chop them into different related user data. उससे बदले क्या करता है, हर एक रिक्वेस्ट ये छोटे छोटे टुकड़े में इसको सेंड करता है. So that means each request must be small enough to fit into one user data. Okay? So that is no connection establishment and no connection termination. तो कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई टर्मिनेशन नहीं होता है. तो यहाँ पर कोई ऐसा एक यूडीपी कोई सेंड नहीं करता, एक डेटा स्ट्रीम सेंड नहीं करता. इससे बदले वो क्या करता है कि छोटा डेटाग्राम में फिट हो इतना ही डेटा वो यहाँ पे सेंड करता है. तो हम कहते हैं उसको वन बाय वन डेटा से रखें सेंड. तो कभी कभी आपको रियलाइज होता है, कभी कभी आप एक्सपीरियंस करते हैं कि वीडियो जब आपका चलता है, वीडियो तो होता है, बफर करता है, बफरिंग करता है. उसको बफरिंग करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं बफरिंग. बफरिंग करना है मतलब that particular video packets will be stored into the buffer and then one by one that will be sent to your at your destination. So once the buffer full, it does not save. So next is process sends short messages less than 65507 bytes can use UDP. मैसेज कितना यूज करता है, लेस देन दिस नंबर ऑफ बाइट्स यूडीपी यूज करता है. सो 65536 माइनस 8 बाइट इतने बाइट में से 8 बाइट माइनस कर, साथ में ये इसका जो भी आएगा +20 और 20 माइनस कर दो, इसका मतलब 28 माइनस कर, तो आपको ये इतना मिलेगा. तो ये 20 क्या है, 20 इज अ दैट मींस आईपी हेडर. 20 क्या है इधर, आईपी हेडर. 20 बाइट्स आईपी हेडर्स. सो 20 आईपी हेडर, 20 बाइट आईपी हेडर प्लस यूडीपी हेडर एंड आईपी हेडर. तो यहाँ पर हम यूडीपी हेडर प्लस आईपी हेडर इनको माइनस करें, इसमें से माइनस करें तो आपको मिलता है 65507. इतना डेटा आपको यहाँ पे लेस देन दिस मच अमाउंट ऑफ बाइट्स दैट कैन यूज बाय द यूडीपी. तो यूडीपी का विंडो जो होगा, सो ये विंडो इतना हो सकता है 65507 बाइट्स. ठीक है. नेक्स्ट फ्लो कंट्रोल. नेक्स्ट सर्विस है यूडीपी की, दैट इज फ्लो कंट्रोल. सो देयर इज नो फ्लो कंट्रोल एक्चुअली. मैंने पहले कहा था कि ये फ्लो कंट्रोल दिया है, लेकिन देयर इज नो फ्लो कंट्रोल. देयर इज नो फ्लो कंट्रोल. ये सर्विस होती है, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल तो होता नहीं है एक्चुअली. मींस नो विंडो मैकेनिज्म. फ्लो कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब वहां पे विंडो मैकेनिज्म नहीं होता है. विंडो मैकेनिज्म, नो विंडो मैकेनिज्म. तो विंडो मैकेनिज्म क्या है बाद में देखेंगे. दे रिसीव्ड रिसीवर में ओवरफ्लो, यहाँ पे लिखा. So here receiver may overflow with incoming messages. तो incoming messages से ये overflow हो सकता है. तो इसके लिए कोई flow control तो होता नहीं है उसके अंदर. Flow control नहीं होता. The lack of flow control means that the process using UDP should provide for this service if needed. तो ये तो एक डिसएडवांटेज ही कहे आप, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर है फ्लो एरर कंट्रोल. अगेन देयर इज नो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म. यूडीपी में कोई एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता है एक्सेप्ट चेकसम.
हाँ, चेकसम तो जरूर होता है इसके अंदर। हम कैसे चेकसम यूज करेंगे हम देखेंगे अभी। तो जस्ट चेकसम होता है, लेकिन एरर कंट्रोल मैकेनिज्म वहां पर कोई अवेलेबल नहीं होता है यूडीपी में। व्हेन द रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर थ्रू द चेकसम, द यूजर डेटाग्राम इज साइलेंटली डिस्कार्डेड। अगर एरर आता भी है, हमने पहले भी कहा था, इसके पहले भी जो लेक्चर हुआ था उसमें भी हमने बोला था कि अगर वहां पे कुछ एरर आता भी है, इससे इट इज डिटेक्टेड वाया चेकसम, तो यूडीपी क्या करता है, उसको साइलेंटली डिस्कार्ड कर देता है। जैसा कि यहाँ पे बफर है, फॉर एग्जाम्पल आपको वीडियो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो उससे यूडीपी को कहीं कुछ लेना देना नहीं। दैट विल डिस्कार्डेड साइलेंटली, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ओवरफ्लो, बफर ओवरफ्लो हो रहा है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सो the lack of this error means that the process using UDP should provide for this service if needed। ठीक है, ये एरर कंट्रोल यहाँ पर नहीं होने की वजह से ये डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद है चेकसम। अब ये जो चेकसम है, इट इज अ टाइप ऑफ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यूज्ड इन यूडीपी, नॉट एग्जैक्टली द एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, बट चेकसम। तो इट इंक्लूड्स 3 सेक्शंस। एक है सुडो हेडर, सेकंड है यूडीपी हेडर, एंड थर्ड है डेटा कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा आ रहा है तो ये इसको चेक करेगा। तो ये सुडो हेडर का मतलब क्या होता है? सुडो हेडर इज अ पार्ट ऑफ द हेडर ऑफ द आईपी पैकेट। ये आईपी पैकेट का एक पार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ आईपी पैकेट, जहां पर यूजर डेटाग्राम ये एनकैप्सुलेट किया जाता है। एनकैप्सुलेट किया जाएगा विथ सेम फील्ड ऑफ जीरोस। एनकैप्सुलेशन का मतलब यह है कि वहां पे अगर डेटाग्राम है तो उसको एक हेडर ट्रेलर, ये इसको ऐड कर देना। एक पैकेट है, डेटा पैकेट है यहाँ पे, इसे हेडर ट्रेलर ऐड करना, दैट इज एनकैप्सुलेशन। तो ये क्या करता है यहाँ पे, यूजर डेटाग्राम इज टू बी एनकैप्सुलेटेड विद सम फील्ड विथ जीरोस। सारे नहीं, जो ब्लैंक है उसको जीरो से फिल कर। If the checksum does not include the pseudo header, the user datagram may arrive safe and sound। pseudo header अगर नहीं है तो फिर ठीक है। The value of this protocol field for UDP is 17। pseudo header, it is a part of the header of the IP packet। pseudo header क्या है? एक पार्ट होता है IP header का, हेडर ऑफ द आईपी पैकेट। तो आईपी हेडर का ये पार्ट है। ये 32 बिट सोर्स एड्रेस होते हैं इसके अंदर। इट इंक्लूड्स 32 बिट सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड 8 बिट प्रोटोकॉल फील्ड एंड 16 बिट यूडीपी टोटल लेंथ 16। So the value of this protocol field is 17। It is a pseudo header। तो pseudo header हम एग्जाम्पल से हम लेंगे यहाँ पे कि अगर ये वैल्यू अगर चेंज होती है, 17 जो वैल्यू है, जो 17 वैल्यू है, ये 17 वैल्यू अगर ये चेंज होती है तो फिर कब होगी ये? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। चेकसम कैलकुलेशन एट द रिसीवर विल डिटेक्ट इट एंड यूडीपी ड्रॉप्स द पैकेट। इट इज नॉट डिलीवर्ड टू द रॉन्ग प्रोटोकॉल। ये अगर प्रोटोकॉल की तो फील्ड तो 17 है, 17 नहीं है, यहाँ पे चेंज हो जाती है तो वहां पे पैकेट मिलेगा नहीं, और क्योंकि रॉन्ग पैकेट है। तो यहाँ पे ये जो सुडो हेडर है चेकसम कैलकुलेशन के लिए हम जो यूज करते हैं, तो सुडो हेडर है यहाँ पे 32 बिट, यहाँ पे 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस होगा, 32 बिट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा। यहाँ पर सुडो हेडर में ही सारे जीरो होंगे, 8 बिट प्रोटोकॉल होगा वहां पे, और 16 बिट यूडीपी टोटल लेंथ होगा। यही यहाँ पे है 16 बिट यूडीपी टोटल लेंथ।
ये तीन ये सूडो हेडर में होगा 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस, 32 बिट source IP address, 32 bit destination IP address, and 8 bit protocol, 8 bit protocol field, and 16 bit UDP total length, UDP total length, 16 bit UDP total length. तो ये sudo header का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर sudo header के अलावा जो हेडर है, ओरिजिनल जो हेडर है, इसका सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है 16 बिट्स और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होता है 16 बिट, 32 बिट का है। यूडीपी टोटल लेंथ कितना है 16 बिट है और चेकसम कितना है यहाँ पे 16 बिट है, चेकसम 16 बिट है और बाकी जो दिख रहा है दैट इज द डेटा। सो पैडिंग मस्ट बी एडेड टू मेक द डेटा मल्टीपल ऑफ 16 बिट्स। तो यहाँ पे तीन हिस्सों में इस पर्टिकुलर पैकेट को बांटा गया है। पहला सूडो हेडर, हेडर एंड सिंपली डेटा। तो चेकसम अगर कैलकुलेट करना है, हाउ विल यू कैलकुलेट द चेकसम? यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे अभी कि कैसे कैलकुलेट करें। तो ये तो पता है सब। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 153.18.8.105, वैसा ही यहाँ पर जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये 171.2.14.10 है। अब यहाँ पर चेकसम कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्या करना है हमें चेकसम कैलकुलेट करना है। सो हाउ यूडीपी विल कैलकुलेट द चेकसम? सिंपल यूडीपी यूजर डायग्राम, यूजर डायग्राम के लिए चेकसम कैसे कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो 153.18 है, ये 153.18, इसको हम क्या करते हैं 8 बिट एंड 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में? सिंपल सी मेथड मैंने बताया था इसके पहले, 128 64 32 then 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब यहाँ पर ये 8 बिट में इसको कन्वर्ट करना है हमें। कैसे करें इसको कन्वर्ट? 153 को देखना है हमें क्या करना है यहाँ पे 153 को देखना है। 153 जो है कहाँ से कैलकुलेट होगा 128 प्लस। अब यहाँ पर अगर हम करें 153 हमें निकालना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 153 128 प्लस 25 आता है यहाँ पे, तो बचता है 25 माइनस 16 प्लस 16, ठीक है ना। 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, इनकी अगर टोटल करें कितना होता है 128 प्लस 16 प्लस 9, ये होता है 153। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 128, तो यहाँ पे 128 है तो वहां पे हम क्या करें 1 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं। 64 हमने लिया क्या इस टोटल में? नहीं, तो इसको 0 करते हैं। 32 लिया क्या हमने? नहीं, इसको 0 करते हैं। 16 लिया क्या हमने? यस, तो यहाँ पे 1 करते हैं। 8 लिया क्या है यहाँ पे? हाँ यस, हमने ये 1 लिया, 8 लिया है तो 1 करते हैं। 4 लिया क्या हमने? 4 2 लिया क्या? नहीं लिया, 0 1 लिया क्या हमने? 1 लिया। सो इट इज 153, इट इज आल्सो 153। सो ये 153 is converted into binary 153। वैसे 18 को कन्वर्ट कर दो, 18 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? 18 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हम तो 16, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा 16,
एंड 2 0 0 1 0 0 0 0। देखो अभी यहाँ पे 3 0 है, 3 0 है, 1 है, 2 दो बार 0 है, 1 0 1 0। So this is a simple method of converting the number, that means this decimal number into binary. तो ये हमने दो कॉलम में किया इसको 53.18, उसके बाद है 8105, फिर है 172.2, 14.10। ये तो हो गया इतना, ये दोनों हो गए। अभी क्या है, सारे जीरो है यहाँ पे, ऑल जीरो। तो ये 000 मतलब कितना बिट है यहाँ पे, ऑलवेज इट इज 8 बिट, इट इज आल्सो 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट। हमने यहाँ पे 17 को करो कन्वर्ट, 0001 00001, तो ये 7, ये भी हो गया। देन 15, ये तो इन इटसेल्फ 16 बिट, दो बार हमें लेना पड़ेगा 15 को। पहले तो 00 आएगा, ये पूरा 0 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद 15 को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं 8421 8421 15। वैसे ही अभी यहाँ पे 1087, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सोर्स पोर्ट एड्रेस एंड दिस इज डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। इट इज अ सोर्स पोर्ट एड्रेस, इट इज डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। तो इनको भी क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 15 को किया हमने, व्हाट इज दिस 15, इट इज यूडीपी टोटल लेंथ। यूडीपी टोटल लेंथ हम 15 लेते हैं, और यहाँ पे ऑल जीरोस है, तो ये तो कर लिया है। यहाँ पे ऑल जीरोस फॉर चेकसम, जीरो चेकसम, यहाँ पे क्या है, जीरो चेकसम। यहाँ पर ये डेटा है, तो डेटा टी को कन्वर्ट करना है आपने, ई को कन्वर्ट करना है, उसके बाद एस को करना है, टी को करना है, सारे इनको कन्वर्ट कर देना है। पैड करने की जरूरत नहीं, दैट इज अ पैडिंग। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, पैडिंग का 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे हम पैडिंग के लिए 0। देन टेक अ सम, यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी सम लेनी है, इनका एडिशन करो, जो भी आएगा। जैसा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड है 1 रख दो, इवन है तो फिर यहाँ पर कैरी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली 0 करना है, ठीक है ना। जैसा यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो वहां पे 1 होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी तो 7 ही है। अच्छा कोई बात नहीं, गलत हो गया। सो टेक सम ऑफ दिस वन एंड देन कॉम्प्लीमेंट इट। इसको क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है। सम लेने के बाद इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपको मिलेगा चेक सम, एंड दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस चेक सम, दिस वन, या तो फिर दिस वन। So this is the value of this checksum, this one। तो ये checksum निकालने का एक तरीका होता है UDP। So checksum calculation of a simple UDP user data। UDP does not provide congestion control। UDP assumes that a packet sent are small and sporadic and cannot create congestion in the network। So this assumption may or may not be true today when UDP is used for real-time transfer of audio and video। तो ये assumption यहाँ पे अभी चलता नहीं है, क्योंकि हम रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ ऑडियो और वीडियो यूजिंग द UDP हम करते हैं। लास्ट नेक्स्ट पार्ट है इसमें इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन में तो कोई ज्यादा आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो when process has message to send through UDP,
it passes the message to UDP along with the pair of socket address and the length of data. So there length of data, this one. थ्रू सॉकेट ये मैसेज सेंड होगा जब हम थ्रू द यूडीपी, जब हम डेटा सेंड करते हैं तब क्या करेगा, यहाँ पे यूडीपी डेटा, यूडीपी हेडर यहाँ पे अटैच कर देगा. दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन. एंड देन इट विल that UDP, when UDP receives the data and adds the UDP header, UDP then passes the user datagram to IP with the socket address. IP add its own header using the value 17. हमें पता है 17 वैल्यू होती है उसकी. Using value 17, it will add in the protocol field, indicating that the data has come from the UDP header and passes it to फिजिकल लेयर. ये फिजिकल लेयर में इसको पास कर, एंड देन इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट. तो यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में रिसीवर क्या करेगा, इसको डिकैप्सुलेट कर देगा. इसको क्या करेगा, डिकैप्सुलेट. व्हेन द मैसेज अराइव्स द एट द डेस्टिनेशन होस्ट, द फिजिकल लेयर डिकोड्स द सिग्नल इनटू बीट्स एंड पासेस इट टू द डेटा लिंक लेयर, दैट मींस अपर लेयर, एंड लास्टली इट विल रिसीव मैसेज. सो इट इज यहाँ पे डिकैप्सुलेशन होगा, यहाँ पर डिकैप्सुलेशन होगा, यहाँ पर डिकैप्सुलेशन होगा, और उसके बाद इसको यहाँ पे मैसेज मिलेगा. यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा हेडर्स. दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन. दैट इज हैपेंस इन अ यूडीपी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट is queuing. It is an important part and it is new part. So in UDP, queues are associated with ports. ये पोर्ट के साथ में एसोसिएट होता है. यूडीपी प्रोसेस क्रिएट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग क्यूज. दो क्यूज बनाता है, एक इनकमिंग क्यू और एक आउटगोइंग क्यू. यहाँ पे देखिए आप, आउटगोइंग क्यू है यहाँ पे और एक इनकमिंग क्यू है ना. तो ये उल्टा लिखा है, उल्टा कर किया है यहाँ पे आउटगोइंग क्यू, क्योंकि यहाँ पे स्टैक हो रहा है और ये इनकमिंग क्यू यहाँ पर ये जमा हो रहा है. तो डे टाइम क्लाइंट इज देयर, सो क्यू फंक्शंस एज लॉन्ग एज प्रोसेस इज रनिंग. जब तक ये प्रोसेस रन होता है यहाँ पे क्यू फंक्शन करेगा. व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट्स, क्यूज आर डिस्ट्रॉयड. ये क्यू हट जाएगा, प्रोसेस खत्म, क्यू खत्म. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये क्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो एट द क्लाइंट साइड, client process send the message to the outgoing queue using source port number. UDP removes message one by one from queue. One by one receive message को remove करेगा client side में. Client side में suppose here it is a client side. तो यहाँ पर ये message UDP रिमूव करेगा. If outgoing queue is overflow, ये overflow हो जाएगी. outgoing queue is overflow, operating system sends wet message to client process. So message arrives for the client. UDP check incoming queue has been created for specified port number in the datagram. If incoming queue is present, then UDP sends received datagram to the end of the queue. तो यहाँ पर कोई ऐसा मैसेज यहाँ पे सेंड नहीं होगा जैसा कि पोर्ट अनरीचेबल है. सो यूडीपी डिस्कार्ड द यूजर डेटाग्राम एंड सेंड्स ICMP मैसेज. कौन सा ICMP मैसेज सेंड करेगा? पोर्ट इज अनरीचेबल. पोर्ट अनरीचेबल कब? व्हेन देयर इज नो क्यू. Whenever there is no queue. ये queue अगर नहीं है तो यहाँ पर unreachable. Now let us see the UDP queuing at server side. When server start, it asks for incoming and outgoing queue using its well-known port. When message arrives for a server, UDP checks incoming queue is created for the port number specified in destination field. If queue is present, then UDP send received datagram to the end of the queue. If no such queue, UDP discard the user datagram. जैसा यहाँ पे client side में होता है वैसे यहाँ पे server side में होता है. अगर queue है वहाँ पे तो
ठीक है, इफ नो क्यू देन पोर्ट इज अनरीचेबल मैसेज ICMP सेंड करेगा. कहाँ, किसे करेगा? क्लाइंट को करेगा. सो इनकमिंग क्यू इज फुल, UDP drops the datagram and send message port unreachable to the client. So let us see, next is multiplexing. This UDP service. So all of you know about this multiplexing. So it will multiplex number of processes, number of messages into one. So at the sender side, when there may be several processes that need to send user data types. However, there is only one UDP. यहाँ पर एक ही UDP होगा और बहुत सारे यहाँ पे डेटाग्राम्स है. So this is nothing but a many to one relationship. It is many to one relationship and requires multiplex. बहुत सारे डेटाग्राम्स है उसको एक इसमें. So that depending on the port used by these processes. ये port यूज करेगा, एक पोर्ट यूज करेगा, ये दूसरा पोर्ट यूज करेगा, ये भी एक पोर्ट यूज करेगा, ये भी पोर्ट यूज करेगा. So it accepts, UDP accepts these messages from the processes, from different processes, differentiated by their assigned port number. After adding the header, UDP passes the user datagram to मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है फिर एट द रिसीवर साइड जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है फ्रॉम द सेंडर साइड, एट द रिसीवर साइड there is only one UDP again, many processes that can receive user datagrams. So this is one to many relationship. It requires demultiplexing. यहाँ पर बहुत सारे processes already है IP में, तो ये यहाँ पर port जो भी है उसके port using that port that will be demultiplexed and sent over that particular port. So UDP receives user datagram from IP. After error checking and dropping of the header, UDP delivers each message to the appropriate process based on the port number. जो भी port इसका पहले था उसके port के हिसाब से इसको send कर देगा. So this is demultiplexing. And last is typical applications. So UDP, there are typical applications of UDP. UDP is suitable for process that requires simple request response communication with little concern of flow and error control. It is not usually used for a process such as FTP that needs to send bulk data. यहाँ पर ये with a little concern of flow and error control that it sends the data. UDP is suitable for process with internal flow and error control mechanism. For example, TFTP process includes flow and error control. It can easily use UDP. Next application is UDP is suitable transport protocol for multicasting. Multicasting के लिए UDP suitable protocol है. UDP is used for management process such as SNMP. UDP is used for some route updating protocols such as routing information protocol. UDP is normally used for real-time applications that cannot tolerate uneven delay between sections of received messages like YouTube live. या फिर हम कहेंगे live messages. So here we conclude the UDP services and application.